Anji, so class 9th, a very good afternoon to you. I am your Nandini ma'am, and today we are going to discuss about question answers which are given in the NCERT book from the chapter tissues. Finally, tissues की जो एक क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन था वो खत्म हुआ. Now we are going to do the questions. Okay, चलिए. So first of all, the very first question is ये बेटा आपको ना इंटेक्स क्वेश्चंस के फॉर्म में जो ब्लू कलर के क्वेश्चंस होते हैं ना वो है ये. ठीक है, बीच बीच में से भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे. So the very first question is, what is a tissue? Yes, who is going to tell me what is a tissue? Yes. हाँ जी, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ cells, very good, performing a similar function. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. यस बेटा, कोई एग्जाम्पल दीजिए. हाँ जी, कोई भी एग्जाम्पल. Connective tissue, Yes, connective tissue, muscle muscles. tissue. Yes, very good. So we'll write down muscle tissue, comma, connective tissue. ठीक है जी. Okay, चलिए. What is the utility of tissues in multicellular organisms? Yes, हमारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसमें ऐसा क्यों होता है कि आपको क्या जरूरत है टिश्यूज की? यस, हाँ जी बताइए. अरे क्या यूटिलिटी है टिश्यूज की? देखो, द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Ma'am, division of labor, I guess. Yes, very good. Guess nahi, it is the correct And answer. structural and mechanical strength. Yes, they are composed of a large number of cells. ठीक है, तो अब देखिए अगर वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं और वो अपना अपना काम करेंगे तो इट विल बी अ बिग ट्रबल, राइट? एक ही काम को करने के लिए आप कितने सेल्स को रखोगे? सो bringing up the cells together which are performing a particular function, that will be like आप एक ग्रुप को एक फंक्शन अलॉट कर रहे हो. ठीक है ना, वो फंक्शन अलॉट करने का मतलब क्या है? यू आर एक्चुअली डिवाइडिंग द लेबर. So that proves a very important point for the sustenance of your multicellular organisms. So division of labor. The key word is division of labor. ठीक है जी, is the most important point of tissues. ठीक है Can जी. I tell the third question answer? श्योर थर्ड बेटा. वाला मेरे को आता है. चलो राघव को बताने दो क्योंकि राघव तो कभी Ma'am, कभी पूछा है. three type of tissues है मैम. पैरेन्काइमा, हाँ जी. कोलेन्काइमा यस, और क्लेरेन्काइमा. वेरी गुड. सो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे? देयर आर 3 types of simple tissues. ठीक है, number 1 is parenchyma, number 2 is, yes, क्या है number 2? collenchyma. कोलेन्काइमा and फिर then sclerenchyma. Yes, and number 3 is scleren. है ना जी, मन्नत मत करो बेटा. फोर्थ वाला आता है मैम मेरे को. Okay, that is good. Just a second, let me change the color of my pen. चलो. Okay, where is apical meristem found? Apical meristem is found in root tip and the shoot tip. Yes, very good. So obviously ये एपिसिस में ही मिलेगा, so that is on the shoot tip and the root tip. Very good. So apical meristem is found in the shoot tip and root tip. Okay, खुशी आप देना चाहोगे आंसर नेक्स्ट?
Which tissue makes up the husk of coconut? कौन सा टिश्यू था ये? Do you remember? Yes बेटा, कौन सा टिश्यू होता है? Okay निखिल, आप बताओ. Husk of coconut. Parenchyma. No. Chyma. Sorry? Parenchyma. No. परमानेंट टिश्यू होता है, No. परमानेंट टिश्यू होता है। This simple tissue. It is मेरे हिसाब से sclerenchyma. parenchyma होना चाहिए. Sclerenchyma. ठीक है जी? Sclerenchymatous tissue makes up the आउटर कवरिंग ऑफ द husk of. मैम एक बार शुरू से कर दो, मैम स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ जी बेटा, बस मेरे को थोड़ी देर दो, मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, चलो. हमने दोनों और मैम हस्क वो होते हैं बाल बाल। हाँ जी, बाल बाल. What are the constituents of phloem? Phloem कैसा टिश्यू था? मैम कॉम्प्लेक्स के सिंपल? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स. तो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे फ्लोएम के? कितने होते हैं दो. उसके? है नहीं, 4 चार. चार एलिमेंट्स बोलते हैं फ्लोएम के एलिमेंट्स. सो देयर आर 4 एलिमेंट्स इन फ्लोएम. अब मुझे नाम कौन बता रहा है? खुशी. देयर आर 4 एलिमेंट्स इन फ्लोएम. यस, मुझे नाम बताएंगे मनन. ए पार्ट, सी ट्यूब, अब याद आया होगा. बी पार्ट, कंपेनियन सेल. Phloem parenchyma, phloem fibers. Yes. So it is phloem fibers and D part, मतलब the fourth element is phloem parenchyma. मैम सेवंथ आंसर। हाँ जी बताओ. Name the tissue responsible. मैम मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज। No, it's muscular tissue. हम Yes, मूवमेंट ma'am, की बात कर रहे हैं ना, तो इट इज मस्कुलर. ठीक है जी. मैम पर ऐसे जो ब्रेन से मसल्स का मैसेज जाया हो नर्वस टिश्यू। हाँ जी, is responsible for movement in our body. चले जी, अब बताओ. What does a neuron look like? कैसा दिखता है? हम elongated होता है ओके. और उसके एक न्यूक्लियस होता है और साइड को देखो. सेंटर में उसके एक बहुत लंबी टेल होती है। Neuron is the nerve cell and it has 3 main parts, right? मेरे को लेकिन 2 आते हैं. Okay. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आता है मुझे. No. मैम एक्सॉन Axon, cell body और एक and dendrites. ठीक है जी. ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर. मैम 8th 9th आंसर मैं दे दूं। हाँ जी, आप दे दो. कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स बताने हैं आपने. मैम कार्डियक मसल्स आर involuntary, cardiac muscle cells are Who is with you? cylindrical, branched and uniciliate. ये तो आप कहीं से देख के पढ़ के बता रहे हो मुझे. नहीं मैम मेरे Someone is there with you जिसके साथ आप हंसी जा रहे हो, है ना? इतना बड़ा फोन है इसके पास. सही बात है. मैम फोन में से देख के चैप्टर यार. पढ़ा हुआ है मैम। ओहो. मैम सच। याद रखना ये बात, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट पोस्ट करना है. यस मैम सच में मैम चैप्टर पढ़ा हुआ है मैम मैंने। अच्छा. कार्डियक मसल क्या होती है, कहाँ मिलती है? मैम मैम वो चलेगा जो बता रहा था। कहाँ होती है? मतलब कार्डियक मसल तो मैम बॉडी में होती है। अच्छा. हार्ट में सारी मसल्स बॉडी में ही होती हैं. सारी सब कुछ हमारी बॉडी में ही है. हार्ट में होता है.
मैं उसकी लोकेशन पूछ रही हूँ आपसे, कहाँ होती है? हार्ट। आप तो कह रहे हो चैप्टर पढ़ा है। हार्ट। हाँ जी काके। शो यस मैम। रिदमिक। हाँ जी मैम ये मैम ये वॉल्स ऑफ द हार्ट में फाउंड होती है और मैम अंडर इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल। ये तो इनवॉलंटरी इसने क्या एकदम होता से है? सर्च कर लिया। हाँ नहीं, इनवॉलंटरी मैम क्या होता है? मैंने बताया था ये वर्ड मैम आपको। मैम क्या कह रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉलंटरी? मैम इनवॉल्यूंटरी हम जो बताया था वो चलेगा। that go that अच्छा चलो, अभी तो चल जाएगा, that कोई बात नहीं, लेकिन मैम that control especially smooth muscles। हमें ऑटोमेटिक चलती हैं ब्रेन के through। इनवॉलंटरी मतलब इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, आप इसको चाह कर भी Yes रोक मैम। नहीं सकते हो। तो स्मूथ मसल बीच में कहाँ मैम से आ गई? involuntary muscles are also called as the unstripped or non-stripped muscles, and ma'am these can be defined as the muscles and cardiac that function or contact एक without मिनट राघव, continuous control and are controlled by the cardiac muscles। राघव एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने आपसे इनवॉलंटरी मसल नहीं पूछा था, मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी। आई डिडंट आस्क यू इनवॉलंटरी मसल, मैंने पूछा आपसे इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है। अब हमें देखो, हम किसी मसल को नाम दे रहे हैं बेटा, इनवॉलंटरी मसल, हमें मतलब तो पता होना चाहिए हमने क्यों उसको ये Yes नाम दिया। वो मैम involuntary muscle का मैम because मैम ये रिफ्लेक्स करते हैं मैम फंक्शंस को, और मैम ये डायरेक्ट कंट्रोल करती है मैम स्पेशली स्मूथ मसल्स के साथ। इनवॉलंटरी वर्ड का मतलब होता है विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। ठीक है चलो। यस मैम वही। तो वही चाहो ना नहीं, चाहो वो हो गए रहेगा। हाँ ये तो है नहीं, कोई नहीं बेटा, आई एम जस्ट नोटिसिंग द थिंग्स, जस्ट नहीं अभी। मैम चैप्टर मैम पढ़ा हुआ है मैम मैंने। चलो अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है तो। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू? यस बताओ भाई, क्या होते हैं फंक्शंस? पहले तो क्या था, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू था ये? हाँ जी, क्या करता था ये? इट फिल्स द स्पेस। ये टिश्यूज को रिपेयर करता था आफ्टर कोई भी इंजरी के बाद। यस, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ठीक है, देन जैसे निखिल बता रहा है मुझे, क्या है? रिपेयरिंग पार्ट, राइट? इट रिपेयर हेल्प्स द इन, टिश्यू आफ्टर यस, इंजरी। हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर। आफ्टर इंजरी। ठीक है, और भी कोई पॉइंट था मैम इट इज प्रेजेंट राघव? और भी कोई पॉइंट है क्या इसका? टू हेल्प द मैम एक और पॉइंट है मैम। हाँ जी, नो उसको फ्लोट करना। वो एरियोलर नहीं होता, वो एरेनकाइमा होता है। हाँ जी, मैम और कोई? इसका थर्ड पॉइंट तो नहीं पता मैम, पर टर्म टिश्यू पता है मैम मेरे को। हाँ जी बताओ। मैम टर्म टिश्यू। अच्छा नहीं, वो रुक जाओ, अभी टर्म टिश्यू पूछूंगी आपसे। इट सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम भी करता है। ठीक है जी, गॉट इट? तो ये हमारे फर्स्ट 10 यस मैम। क्वेश्चंस हो गए हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इंडेक्स क्वेश्चंस, राइट? सो काइंडली डू देम।